औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे कि जॉन कीट्स किस इरा में आए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इसके अलावा उनका जो इंटरेस्ट था वो किस फील्ड में था, किस किस्म की उन्होंने लाइफ जो थी वो स्पेंड की, क्या उनके काम ऐसे हैं जिसकी वजह से आज भी उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में एक अजीम पोइट के तौर पे जाना जाता है, उसे पढ़ा जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोगों को गाइड कर दूंगा, उसके बाद जो है उर्दू में भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उर्दू मीडियम के होते हैं और उनके लिए अपनी लैंग्वेज में लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो जॉन कीट्स के बारे में अगर हम बात करें, ही वॉज बोर्न इन 1795 एंड ही डाइड in 1821. He was just 25 years old when he died. He actually suffered from tuberculosis. He suffered from that disease. In those days, in 90s, there was no proper treatment of that disease. Keats was suffering that disease when his brother died. He knew it very well that he will not survive. Keats was very well aware that he is not going to survive. Keats came from a humble family. When he was quite young, he lost both of his parents. Both his parents died. Keats was the eldest of his brothers and sisters. He was responsible of all his brothers and sisters, providing for their basic necessities and needs. As a young man, Keats came under the training of famous surgeon. Keats wanted to be a surgeon, not a physician, but the problem was that Keats was deeply interested in literature, especially in poetry. He wants to become a poet. Even he sacrificed his future. Becoming a professional is not quite easy. Keats chose a very difficult profession. There was a fashion of reading literature in those days. Reading was a source of pleasure and entertainment in those days. When Keats' poems were published, then unfortunately he received a very harsh response from the critics. The critics attacked him severely. There were some reviews that were published in some of literary journals. Those reviews were not just harsh, they were cruel. They made fun of Keats' poetry. The reviews were very harsh. Even in those reviews, someone advised him to go back and choose his medical profession. Keats was disappointed and discouraged due to negative criticism. He discourages by different critics and artists, but Keats did not give up writing. He continued writing. He wrote letter and his words was that, I am sure I will be among in the English poets remember after my death. His prediction became true because after his death he was highly appreciated. After Romantic Age, greatest critic Matthew Arnold remarks, yes, Keats was a best English poet. This was a great comment. He was recognized as a great poet of his time. Keats has produced a number of poetry. By the time he died, he had produced a quantity of great poetry. He has written a number of poems. Some of his poems are narrative poems. He almost wrote 18 odes. How much? 18 odes. He writes almost 18 odes.
These odes are remarkable piece of poetry. They are truly highest supreme quality of poetry he has presented in 18 odes. One of the critics remarks that if Keats had not written any other poem, these odes are in themselves sufficient to give him a high rank in the great poets. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कीट्स की बात करें तो इसको जो अप्रिशिएट किया गया वो इसकी डेथ के बाद ही किया गया। जैसे आजकल के ज़माने में भी जो इंसान ज़िंदा होता है उसकी कदर नहीं की जाती, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है या वो आपसे कट ऑफ हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो फिर आपको उसकी कदर मंजिलत का आइडिया होता है कि वो शख्स क्या था। तो इसी तरह ही कीट्स की जो लाइफ है शुरू से लेके एंड तक, कोई इतनी लंबी चौड़ी उसकी ज़िंदगी नहीं है। जस्ट ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। तो इस 25 से 26 साल के अरसा में उसने सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर गम ही गम देखे। शुरू में जो था उसकी जो फादर थे उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी मदर ने कहीं और आगे जाके शादी कर ली। अब ये सबसे बड़ा था तो इसके ऊपर अपने घर की ज़िम्मेदारियां भी थीं। बाकी 3 भाई और एक बहन थी जिसकी ज़िम्मेदारियां इसके ऊपर थीं। अब ये चाहता था कि ये राइटर बने और एक पोइट बने, लेकिन सबसे पहले जो था ये गया एक फेमस सर्जन के पास, और उस दौर के अंदर भी जो फिजिशियन थे और सर्जन थे उनका एक अच्छा रिप्यूट था। लेकिन सर्जरी में कीट्स जो था वो नहीं जाना चाहता था। वो जस्ट एक सर्जन के पास जो था वो जाता था। लेकिन अब मसला ये था कीट्स का कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था लिटरेचर से, और उसे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, ख़ास तौर पर शायरी में, और वो एक शायर बनना चाहता था। इसके लिए उसने जो अपना मेडिकल का प्रोफेशन था उसको उसने छोड़ दिया, तर्क कर दिया कि अब जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो था वो एक राइटर बनना चाहता था। अब अगर देखा जाए तो राइटिंग्स जो है वो एक कोई इजी या आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको पब्लिश करवाना पड़ता है अपना काम। पब्लिशर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाज़ो नखरे उनके उठाने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाके किसी अच्छे आप लोग पब्लिशर के थ्रू अपनी किसी भी बुक को, जर्नल को, आर्टिकल वगैरह को आप लोग पब्लिश करवाते हैं। लेकिन कोई इतना पेइंग ये जो है वो पेशा नहीं है। तो इसीलिए एक तरह से अगर देखा जाए तो कीट्स ने बड़ा ही मुश्किल पेशा चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बिकम अ सर्जन। अगर हम देखें डॉक्टर्स आज के दौर में, अगर देखें जो अच्छे डॉक्टर्स हैं 4000, 5000, 2500 तक उनकी जो है वो फ़ी होती है। तो उस फ़ीस के अंदर भी मतलब देखा जाए तो वो अच्छे खासा अपने मंथ का जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। तो उस टाइम में भी लोगों ने जो इसके काम को देखा तो उसके काम को उस टाइम भी कोई इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्रिटिक्स जो थे उन्होंने बड़ा ही एक हार्श किस्म का जो था वो तज्ज़िया दिया, अपना क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की इसके ऊपर कि ये इसका कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से कीट्स को जो है दोबारा से इसकी चीज़ें जो हैं वो पब्लिश की जाएँ। और उनमें से जो जो इसमें एक क्रिटिक था उसने इसको मशवरा भी दिया कि कीट्स तुम्हें चाहिए कि तुम जो है वो सर्जन की तरफ दोबारा, अपनी जो आपका पेशा है मेडिकल का उसकी तरफ दोबारा चले जाओ, तुम्हारा क्या काम है इसमें। लेकिन अब कीट्स डिसअपॉइंटेड भी हुआ, डिस्करेज भी हुआ इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म की वजह से। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और उसने अपने एक दोस्त को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में उसने ये कहा कि याद रखो मेरे मरने के बाद मेरा नाम अज़ीम इंग्लिश के पोइट्स में लाजमी आएगा। और ये बात उसकी जो थी वो बिल्कुल सही साबित हुई जब 25 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इसका भाई भी इसी बीमारी की वजह से, जिसे हम टीबी बोलते हैं, उस दौर में टीबी का इलाज नहीं होता था और खांसी के साथ इसको भी जो था वो ब्लड आना शुरू हो गया था, खांसी के ज़रिए से मुंह से ब्लड आता था। तो इसका भाई भी जो था वो भी इसी बीमारी से उसकी भी डेथ हुई थी, क्योंकि उस दौर में इस बीमारी का इलाज नहीं था। तो इसीलिए
जॉन कीट्स जो था उसे बड़ा क्लियरली पता था कि वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ज़िंदा नहीं रह सकेगा। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी जो वफ़ात हुई थी वो भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही हुई थी, टीबी की वजह से ही हुई थी। उन्हें भी टीबी थी और बाद में जो था वो सीवियर किस्म की बीमारी जो थी वो फैल चुकी थी। तो जॉन कीट्स के साथ भी यही मसला था, उसे पता था कि वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकेगा, लेकिन उसके मरने के बाद फिर उसकी जो पोइट्री थी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। लोगों ने उसकी पोइट्री को सराहा, ख़ास तौर पे उसकी जो 18 ओड्स थी। अब ये ओड्स आप लोगों ने एडीबी के अंदर भी पढ़ी है, सेकंड सेमेस्टर में लिटरेचर जो था आप लोगों का, लिटरेचर के पोर्शन में। इसके अलावा जो बच्चे बीएस कर रहे हैं इंग्लिश में, उनके लिए ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। इसी तरह मास्टर्स के बच्चे, एमफिल के और पीआईवी के लोग जितने भी हैं, पीआईवी के स्कॉलर्स, उन सब के लिए जॉन कीट्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है जिसको पढ़ना लाजमी है, ख़ासतौर पर लिटरेचर के बच्चों के लिए। तो इसीलिए ये मैंने मुनासिब समझा कि इसके अंदर एक वीडियो जो है आप लोगों को एक अपलोड कर दी जाए, ताकि आसान अल्फाज में आप लोगों को जॉन कीट्स के बारे में बताया जा सके। इसके साथ साथ एक और मिजरी भी इसके साथ हुई, एक और डिसअपॉइंटमेंट जो इसकी लाइफ में हुई, जो कि आजकल के यंग जनरेशन का भी मसला है कि इसे भी एक लड़की के साथ प्यार हुआ, और लेकिन अब चूँकि इसे पता चल चुका था कि ये ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो वो लड़की भी इसे छोड़ गई थी। तो ये भी एक मिस हैपनिंग थी जो कि इसके साथ हुई। अब रोमांटिक एज में जो मैथ्यू आर्नल्ड, एक बड़ा ही अजीम नाम है क्रिटिक्स में, उसने कीट्स के बारे में ये कहा कि कीट्स जो है ये एक बहुत ही उम्दा किस्म का शायर था, और ये जो उसका कमेंट था, ये जो उसका जुमला था, ये जो उसका रिमार्क था, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था, क्योंकि एक वक्त, अपने वक्त का एक अजीम क्रिटिक, और वो कीट्स के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर है ना। तो इसी तरह कीट्स ने जो था वो पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। उसने बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर पोइट्री लिखी, बहुत लंबी लंबी उसने पोइट्री की नज़में लिखी उसने, पोइम्स जो थी, और वो नैरेटिव स्टाइल के अंदर थी। और उसने आलमोस्ट जो ओड्स लिखी थी, अब ओड्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर लूँ कि ओड्स क्या होती हैं। ओड इज़ अ पोइम इन विच अ पोइट इज़ एड्रेसेस समवन। ओड एक ऐसी पोइम, एक ऐसी नज़म होती है जिसमें जो राइटर होता है वो एड्रेस करता है किसी को भी। अब सवाल ये पैदा होता है, किसको करेगा, एड्रेस किसको करता है? क्या वो अपने आप को करता है? क्या वो लिविंग थिंग्स को करता है? क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स को करता है? या फिर क्या वो आइडिया को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है? क्या ख्याल है आप लोगों का इसके बारे में? एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ओड इज़ अ पोइम इन विच अ पोइट इज़ एड्रेसेस समवन। अब आगे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए राइज किया है, टू होम, किसके लिए, किसको एड्रेस करता है? मे बी विद अ लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर, फॉर एग्जाम्पल नाइटिंगेल, और टू क्रेशियन अर्न। इसके अंदर भी अगर आप लोग गौर करें तो नाइटिंगेल जो था वो कोई रियल बर्ड नहीं था, दैट वाज अ फिक्टिशियस बर्ड, जो फिक्शन था। उसके ख्याल में था कि शायद इस तरह का कोई बर्ड है जिसका साउंड जो है वो बड़ा ही मेलोडियस किस्म का है, और उससे बहुत ज़्यादा इंजॉय वो करता था। ये उसका अपना ही एक जहन था जिसने इसको तख्लीक दिया था। इसी तरह जब हम ओड टू अ क्रेशियन अर्न की बात करते हैं तो ये एक मर्तबान था, एक जो था वो बर्तन था जिसके ऊपर तस्वीरें बनी हुई थी। तो ये लिविंग थिंग्स भी इसमें आ जाती हैं, नॉन लिविंग भी आ जाती हैं, और बाज़-औक़ात एक आइडिया भी होता है जिस तरह ओड टू इंडोलेंस है। इसी तरह एक स्पेसिफ़िक स्कीम जो थी वो राइटिंग के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर कीट्स ने जो थी वो यूज़ की, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। जो रिटन फॉर्म के अंदर जो इसकी पोइट्री का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। लाइक एज ओड्स टू वेस्ट विंड, अगर आप लोग पढ़ें तो वहाँ पे भी इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसके अंदर ओड जो होती है उसका जो थीम होता है वो नोबल वन होता है, और स्टाइल जो होता है वो ग्रैंड होता है, अजीम जो है वो उसका स्टाइल होना चाहिए। यही दो वजहें थी जिसकी वजह से मैथ्यू आर्नल्ड ने और बाकी क्रिटिक्स ने जो बाद में आए, उन्होंने इसकी पोइट्री को एप्रिशिएट किया आफ्टर हिज डेथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि जॉन कीट्स के बारे में। इसमें जो भी इसके मेजर वर्क्स थे, इसकी डेथ, इसकी जो थी डेट ऑफ बर्थ,
इसके साथ क्या हैपनिंग्स हुई, इसके ब्रदर 3 ब्रदर्स 1 सिस्टर और ये सबसे एल्डर्स था, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारी घर की ज़िम्मेदारियां थी। बाकी अपने बहन भाइयों की जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा करना ये उसका काम था। एज ए यंग मैन जो था कीट्स, वो सर्जन के पास भी गया, लेकिन चूँकि इसे पोइट्री में दिलचस्पी थी सो ये पोइट्री की तरफ गया, लेकिन इसे कोई खातिर ख्वाह जो था अपनी ज़िंदगी के अंदर मकाम ना मिल सका। लेकिन आज के दौर में भी अगर हम देखें तो लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कीट्स को पढ़ते हैं और उनके लिए ये लाजमी है। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं और भी लेक्चर्स जल्द ही अपलोड करूँगा सेकंड सेमेस्टर के लिए भी और BS 5th सेमेस्टर के लिए भी। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को जो है वो लाइक किया करें और कमेंट्स दिया करें। बाकी कोई भी अगर आप लोगों ने टॉपिक समझना हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन करें, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं उसके ऊपर भी वीडियोस जो हैं वो बना के अपलोड कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।